Good morning student. We are starting our chapter 4 fiber to fabric. Before starting this chapter, let's discuss some topics which we will cover in this chapter. History of clothing, fiber to fabric, natural and synthetic fiber and plant fiber. These are some topics which we will cover in this chapter. Now let's start with first and foremost topic, history of clothing. Children, as we learned that early humans did not wear clothes. They just covered their body with the help of barks of tree and leaves of tree, and later they used skin of animals, and with the passes of time they learned the art of weaving clothes. आप पिक्चर में देख सकते हैं, डायग्राम्स में देख सकते हैं, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सिर्फ ट्रीज की लीव्स का और बार्क्स का यूज़ करते थे। देन उन्होंने एनिमल स्किन का यूज़ करने शुरू किया अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, एंड देन दे स्टार्टेड टू यूज़ क्लोथिंग मटेरियल. ओके, सो अबाउट 30,000 ईयर अगो people started to using animal skin and trees to covered their body or for clothing. Okay, and about 6,000 year ago they started to use wool for clothing, and in India and China 3,000 year ago China started to use silkworm to produce silk, and India started to use cotton to make for clothing and to make cotton fabrics. Okay, so but these all fabrics are unstitched. They just wrapped around the body. उनको just cover कर लिया जाता था. They are unstitched. Even today we are having some example of like साड़ी, धोती and turban. These cloth materials are unstitched. इनको हम ऐसे ही पहना जाता है. So चिल्ड्रन, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ निडल, जब निडल का इन्वेंशन हो गया तब उसमें थ्रेड्स के थ्रू लोगों ने स्टिचिंग करना सीखा. इट इज़ डन बाय इधर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन और मैनुअली उन्होंने दोनों तरह से कपड़ों को स्टिच करके क्लोथ मटेरियल्स बनाना शुरू किया, और उससे कई फैब्रिक्स से कई क्लोथ मटेरियल्स बनाना हमारा स्टार्ट हुआ. तो क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट आर फैब्रिक्स, व्हाट आर द क्लोथ मटेरियल्स, एंड what are the different materials used to make clothes and how they are made, कैसे बनते हैं वो. So children, clothes are made mostly from fibers. Fibers से बनते हैं, and fibers are twisted together to make yarns. Now yarns are thread. Fibers are thin strands and yarns are thread. These thin strands are twisted together to make threads, means yarn. Okay, then further yarns are arranged together to make fabrics. Yarns जो होते हैं वो horizontally और vertically arrange किए जाते हैं, twist किए जाते हैं उनको, और फिर उसके बाद में हम लोग fabrics बनाया जाता है. जैसे कि मैं अगर आपको fabrics के example दूँ, फर्स्ट थिंग तो फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं. अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ फैब्रिक्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक कॉटन फैब्रिक है. ओके, और इसके बाद में अगर आप देखें तो ये सिल्क, ये जो है ये एक आर्टिफिशियल फैब्रिक है जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है. ये कॉटन फैब्रिक कॉटन से बनाया जाता है, प्लांट फाइबर जो है. नाउ दिस इज सिल्क, दिस material, cloth material is silk material. Okay, it's obtained from silkworm, so we can say it's a animal fiber. ये एक animal fiber का अच्छा example है. Okay, so children, आप देखने में आपको ये सारे जो cloth material हैं ये सब एक single piece दिखते हैं. Means अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो cloth material आप देख रहे हैं, देखने में आपको ये एक continuous piece दिख रहा है. क्या ये कंटिन्यूस पीस है, एक सिंगल पीस है? नो चिल्ड्रन, अगर आप देखा जाए तो ये जो सिंगल पीस है ये कई थ्रेड्स का बना हुआ है. जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, ये जो एक मटेरियल है, अगर हम इसके कॉर्नर से स्ट्रेच करेंगे थ्रेड को तो आप देखेंगे इस तरह से इसमें से थ्रेड्स निकलते हैं. दीज थ्रेड्स आर यार्न. ओके, नाउ अगर इन यार्न को अगर हम आगे फर्दर वी स्ट्रेच दीज यार्न्स विद द हेल्प ऑफ नेल्स, देन यू कैन सी These yarns are made up of thin strand. Okay, अगर आप घर पे भी देखेंगे, आप निडल की हेल्प से किसी थ्रेड को इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे तो आपको हल्के हल्के थिन स्ट्रैंड्स में से निकले हुए दिखाई देंगे. These strands are fibers. Okay, so we can say that fibers twist together to make yarn, and in turn yarns arrange together to make fabric. Okay, so two main process of making fabric are weaving and
नीटिंग। अब हम कॉटन की अगर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको आप कॉटन देखिए, ये कॉटन हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, ओके। तो प्लांट से अगर मैं इस कॉटन को इस तरह से स्प्रेड करूँगी तो आप देखेंगे कई थिन स्ट्रैंड्स आपको इसमें दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कई थिन स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये फाइबर्स हैं, ओके, ये फाइबर्स हैं। अब अगर मैं इनको ट्विस्ट कर देती हूँ फाइबर्स को, ओके, तो आप देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, एक थ्रेड, ओके। दिस थ्रेड इज कॉल्ड यार्न, ओके। ऐसे थ्रेड्स को फिर आगे वीविंग और नीटिंग के थ्रू फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है। डन। सो ये जो कॉटन होता है, इन कॉटन के थ्रेड से हमें कॉटन फ्रॉक, कॉटन शर्ट, इस तरह के फैब्रिक्स हम लोग बनाते हैं। एंड टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड, let's start the chapter. Clothes are made mostly from fiber. Fibers are thin strands of thread that are twisted together to make yarns. Yarns are woven or knitted to form fabric. The fabric is stitched to make clothes. There are two main processes of making fabric from yarn: weaving and knitting. चिल्ड्रन ये बता देते थे, ये जो इसका पूरा समरी है, दैट फाइबर्स क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स ट्विस्ट टुगेदर टू मेक yarns and yarns arranged together to make fabrics, and fabric is stitched to make clothes, okay. And two main process of stitching, or we can say to the two main process of making fabrics from yarn are weaving and knitting. So let's understand these two process. First is weaving process. In weaving process, weaving involve making fabric by arranging two set of yarn. So weaving is done by arranging two set of yarn, okay, that with the help of machine that is called loom, okay. So it is done using a machine called loom that can be hand operated or पावर ऑपरेटेड, जो कि या तो हाथ से ऑपरेट की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी से पावर ऑपरेटेड मशीन होती है। लूम्स आप यहाँ देख सकते हैं इसकी पिक्चर। चिल्ड्रन ये एक पिक्चर है, आपकी बुक में ये क्लियर दी हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये लूम मशीन होती है जिसके अंदर इस तरह से जो दो सेट ऑफ यार्न को वीव कर कर हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज कर कर वीविंग प्रोसेस किया जाता है और उससे फैब्रिक बनाया जाता है, ओके। द पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज इन अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड अ वीव। अब किस पैटर्न में हमने यार्न को सेट किया है, अरेंज किया है, वो पैटर्न जो होता है वो वीव कहलाता है, ओके। सो व्हाट इज वीविंग? इन वीविंग प्रोसेस टू सेट ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर टू मेक फैब्रिक, ओके, विद द हेल्प ऑफ loom machine, okay. And how they are arranged, that pattern is called weave, okay. So this is the weaving process. Now next is knitting process. Knitting is done with the help of two needles, knitting needles, okay. So knitting involves making fabric by forming a series of connecting loops of yarn by using knitting needles और मशीन। ये जो होते हैं कई लूप्स बनाए जाते हैं यार्न्स के, स्पेशली इन वुलन फैब्रिक हम जो वूल के लूप्स बनाते हैं थ्रू दिस नीटिंग। आपने ये सब देखा होगा चिल्ड्रन, ये एग्जांपल आपने अच्छे से नीटिंग नीडल का देखा होगा। आपकी मदर जनरली घर पे स्वेटर बनाती हैं तो बच्चों ने ये चीज़ नीटिंग नीडल देखी होगी। इस नीटिंग नीडल की हेल्प से यार्न के लूप्स बनाए जाते हैं। अ सीरीज ऑफ लूप्स आर मेड एंड फिर इन लूप्स को जो होता है फर्दर आगे इनसे फैब्रिक उनको नीटिंग करके नीडल की हेल्प से फैब्रिक बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्वेटर है, शॉल है, ये सब हम लोग इससे बनाते हैं, ओके। स्वेटर्स आर मेड फ्रॉम वुलन यार्न बाय नीटिंग। इस नीटिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग स्वेटर, शॉल, ये जो होते हैं मफलर है, ये सब आगे बनाते हैं, ओके। सो चिल्ड्रन अगर हम ये दो मेन प्रोसेस थे वीविंग और नीटिंग के। वीविंग के अंदर जनरली हम लोग प्लांट फाइबर जो होता है कॉटन, उसको यूज़ करते हैं एंड देन वी मेड
कॉटन फैब्रिक्स लाइक कॉटन कुर्ता, कॉटन फ्रॉक एंड नीटिंग प्रोसेस में जनरली हम लोग वुलन जो होते हैं क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वूल, जो कि ऑब्टेन होती है एनिमल्स से। तो वी यूज़ एनिमल फाइबर ओके इन नीटिंग। तो ये एक तरह से दो प्रोसेस होते हैं मेन, वीविंग एंड नीटिंग। अगर हम वीविंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानना चाहें कि किस तरह से यार्न के दो सेट आपस में अरेंज होते हैं, तो चिल्ड्रन हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये सब अच्छे से समझ सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वीविंग प्रोसेस थ्रू दिस एक्टिविटी। मटेरियल्स टू डिफरेंट चार्ट पेपर, मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट चार्ट पेपर है चिल्ड्रन। आपको दो अलग अलग शीट लेनी है डिफरेंट कलर की ओके। यू हैव टू टेक चार्ट पेपर ऑफ टू डिफरेंट कलर ओके। देन आपको सीजर लेनी है, आपको रूलर लेना है, पेंसिल लेना है। दीज आर सम मटेरियल्स विच आर नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी। नाउ व्हाट द मेथड इज, कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसमें 30 सेंटीमीटर लिखा है चिल्ड्रन, आप कोई भी लेंथ और विड्थ यूज़ कर सकते हैं, बट वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों शीट की इक्वल होनी चाहिए ओके। देन फोल्ड द शीट इनटू हाफ। इस तरह से हम लोग शीट को फोल्ड कर लेंगे ओके। फोल्ड द शीट इनटू हाफ एंड देन ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। लाइक मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है चिल्ड्रन, आप देखेंगे इसके ऊपर इस तरह से रूलर की हेल्प से आप लोगों को पेंसिल से इक्वल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। एंड देन वी कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। हम इनको लाइन्स को, एक शीट जो होगी उसको हम लोगों इस लाइन के थ्रू कट कर लेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं कट करेंगे, फिर उसको अनफोल्ड कर लेंगे। और कुछ दूसरे कलर की शीट की, जैसे इस शीट के कलर की हम लोग स्ट्रिप्स काट लेंगे। और उसके बाद में हम लोग दिस इज वीव द स्ट्रिप्स ऑफ शीट ए, मीन्स येलो शीट को वन एट अ टाइम थ्रू द शिल्ट इन शीट बी। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग सीजर की हेल्प से इनको कट कर लेंगे। एक की हम लोग स्ट्रिप्स ले लेंगे और एक को अनफोल्ड कर देंगे। अब इस स्ट्रिप्स को हम इन अनफोल्ड पेपर में हम लोग वीव करेंगे। किस तरह से करेंगे चिल्ड्रन, देखिए ये मैंने येलो स्ट्रिप्स पेपर की काटी हैं और इस तरह से मैंने इसको अनफोल्ड करके ये सिल्ट बनाते हुए इसको काटा है। अब हम वीविंग प्रोसेस को देखेंगे चिल्ड्रन। इसमें हम लोग इस तरह से सेट को इस सिल्ट के अंदर इस तरह से हम लोग वीविंग करते हैं। ये बच्चों, ये एक्टिविटी बच्चों आप घर पे कर अच्छे से कर सकते हैं और इस वीविंग प्रोसेस को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं, इवन आप लोग 2 से भी ज़्यादा कलर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और एक सुंदर फैब्रिक डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने इसके अंदर इस तरह से इन सिल्ट्स, ये जो सिल्ट्स हैं, इन सिल्ट्स में से इस शीट को वीव किया है और इस तरह से हम एक लाइन पूरी सीरीज एक बना सककर और वीविंग प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। चिल्ड्रन आप ये एक्टिविटी घर पे करेंगे, आप इसमें अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से आप इसको बनाकर और फिर मुझे सेंड करेंगे ओके। सो दिस इज़ द वीविंग प्रोसेस। दिस एक्टिविटी you have to do as in homework okay children. This was all about this topic. Thank you.